ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੱਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਬੱਸੀ, ਸਮੀਰਾ ਬੱਸੀ, ਅਨਿਲ ਬੱਸੀ, ਕਿਰਨ ਬੱਸੀ, ਅਨੀਤਾ ਸਾਹਨੀ, ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਨੀ, ਬਬੀਤਾ, ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ, श्वेता, श्रेया, साक्षी सानी, अर्श, निकिता, ईशान, सुरभि, निशांत, भावना, ऋषभ, सानिया, रिवान, आरना, अधृत, यादवी, सुफना ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੱਸੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਬੱਸੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 1938 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਮਾਜਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ LLB ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੱਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 7 ਅਗਸਤ 1959 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਬੱਸੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਬੱਸੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਬਬੀਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੱਸੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੱਸੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੱਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਿਵਾਨ, ਆਰਨਾ, ਅਧਰਿਤ, ਸ਼ਾਦਵੀ ਅਤੇ ਸੁਫਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं जबरी के तुम जैसे खिलाते नहीं तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं कौन कहते हैं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी जब कोई नहीं आता
मेरे राम आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं मेरे राम सीता राम मेरे राम सीता राम जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं कोई याद करे उनको कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए मेरे राम सीता राम मेरे राम सीता राम कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए जो प्रेम करे इनको ये उनके हो जाए वो बिन बोले दुख को वो बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं मेरे राम सीता राम मेरे राम सीता राम मेरे राम सीता राम मेरे राम सीता राम दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न को जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को ग्रंथ साहब में लिखा है जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोले न जानी माया मद माता मरना चेतनावे जितु ना फरदा सदिबा जितु ना फरदा सदिबा पसारुल जाना सी सानू किते न मिलदी था पसारुल जाना सी जितु ना फरदा
अदा नहीं कर सकदी जिदों ना दीदा ठंडी छां जिदों ना दीदा ठंडी छां जिदों ना दीदा ठंडी छां असां रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी तू मेरा है मैं तेरा ये रिश्ता टूटे ना मेरे राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 तू मेरा है मैं तेरा ये रिश्ता टूटे ना भावें छूट जाए जग सारा तेरा दर छूटे ना भावें छूट जाए जग सारा तेरा दर छूटे ना जी तेरे दर ते न मिलदी था जी तेरे दर ते न मिलदी था असां रुल जाना सी सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी 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 असां रुल जाना आइए हमसे पहले कि मैं आदरणीय पंडित जी से कहूं कि वे गरुड़ पुराण के माध्यम से हमें जीवन और मृत्यु के रहस्य से अवगत कराएं। हम सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं, तत्पश्चात हम गायत्री का पाठ करेंगे। आइए। इतना तो करना स्वामी इतना तो करना इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना श्री राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर
साथ आप सभी ध्यान अवस्था में बैठकर 3 बार गायत्री का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवति। उनका जन्म होशियारपुर के एक छोटे से गांव रोड मजार में माता लाजवंती एवं पिताजी श्री चंद्रलाल बस्सी के घर हुआ। आगे पढ़ने की ललक ने उन्हें कोटा में वो चले गए, जहां उन्होंने इंटर पास किया और साथ ही नौकरी की। श्रीमती राज रानी और 3 बच्चों के पिता होते हुए उन्होंने नौकरी के साथ मोदी कॉलेज पटियाला से बीकॉम किया और पंजाबी यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वे आयकर विभाग में कार्यरत थे। आजीवन मन से साधारण रहते थे। सादा जीवन, उच्च विचार में पूरा विश्वास रखते थे। अपने 4 बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। बेटे और बेटियों में कभी भी कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं किया। हम पोते पोतियों को हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया। 50-60 वर्षों से वे दंडी स्वामी मंदिर से जुड़े हुए थे। इस पुण्य आत्मा को मेरा शत-शत नमन। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाविहतानि निशाचरचरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। हे राम मामुद्धर। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि रूप में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच में स्वर्गीय श्री बालकृष्ण बसी जी इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करके ब्रह्म तत्व में विलीन हो गई है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा है कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान ने कहा कि देखिए 7 लोग होते हैं, भूलोक, भुवालोक, स्वर्गलोक, मालोक, जलालोक, तपालोक, मृत्युलोक। ऐसे ही नीचे की तरफ होते हैं तल, तलातल, रसातल, पाताल आदि। जो 7 लोक नीचे होते हैं और 7 ही ऊपर होते हैं। तो जिस लोक में हम बैठे हुए हैं उसको कहते हैं मृत्युलोक, भूलोक। मृत्युलोक का मतलब है कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
84 लाख योनियों के अंदर जो भी जीव, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, कितना भी बलशाली हो, ताकतवर हो, धनाढ्य हो, कैसा भी हो, उसको इस संसार से जाना पड़ता है। इस संसार में वो रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गीता जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी। फिर भगवान से पूछा, हम जन्म क्यों लेते हैं? उद्देश्य क्या हमारा? हम आते क्यों इस संसार के अंदर? इस मृत्यु लोक के अंदर हमारा आने का अभिप्राय क्या है? तो भगवान ने कहा कि आहार निद्रा भय तुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। भगवान ने कहा कि देखिए, बार बार आपका जन्म होता है, बार बार आप मृत्यु के ग्रास में जाते हैं, और जब तक आपको मनुष्य की योनि प्राप्त नहीं होगी तब तक आप धर्म नहीं कर सकते, और जब तक आप धर्म नहीं करेंगे तब तक आपका मोक्ष हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा है कि मनुष्य सब योनियों में इतर है, सर्वश्रेष्ठ है, और मनुष्य की योनि को मोक्ष का द्वार भी इसीलिए कहा है कि आहार निद्रा, खाना पीना, बैठना उठना, चलना फिरना, बच्चे आदि पैदा करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर मनुष्य इतर क्यों है? मनुष्य इतर इसलिए है कि वो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, देवदेवो भव, ऋषिदेवो भव। क्योंकि वो अपने माता पिता की आज्ञा की पालना करता है, वो सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। इसीलिए मनुष्य सबसे इतर है। और जो मनुष्य धर्म नहीं करता, अपने माता पिता की आज्ञा की पालना नहीं करता, तो पशु में और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। इससे अच्छा तो हम पशु पक्षी बन जाते। अगर हमको मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है तो हमको धर्म करना चाहिए। भगवान ने बताया कि सबसे बड़ा धर्म घर से ही प्रारंभ होता है। ये नहीं कि आप तीर्थ स्थान पे जाएंगे, कहीं पर मंदिर जाएंगे या भवन पूजन करेंगे। सबसे बड़ा धर्म बताया गया है कि घर से ही प्रारंभ हो जाता है। घर के अंदर जो माता पिता हैं, भगवान ने कहा कि वो देव स्वरूप होते हैं, उनकी आज्ञा की पालना करना पुत्र का कर्तव्य होता है। और जब पुत्र उनकी आज्ञा की पालना करता है तो ये सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। हमें शोक संदेश प्राप्त हुए हैं, उसमें श्री नवदुर्गा मंदिर ट्रस्ट श्रावणगढ़ जी की तरफ से हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, बसी परिवार जी की तरफ से। और इसी प्रकार से बहुत जगह से भारतीय योग संस्थान पंजीकृत पंजाब की तरफ से भी हमको प्राप्त हुआ है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सभा की ओर से शोक संदेश हमें प्राप्त हुआ है, और ये पंजाब केसरी ग्रुप की तरफ से भी हमको ये जो है ना शोक संदेश प्राप्त हुआ है। श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा की ओर से भी हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से भी हमको कई जगह से हमको प्राप्त हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बसी परिवार जी की तरफ से एक ही संदेश है कि आप सभी सुखी रहें, शुभ रहें, और इस परिवार का हमेशा साथ आप देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।